Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel and welcome to yet another video from our best and worst of skincare brand series. जो लोग यहाँ पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि पिछले 1 से 1.5 साल से अप्रॉक्सीमेटली मैं ये सीरीज कर रही हूँ जहाँ पे हर महीने मैं एक ब्रांड पिक करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर वोट्स फ्रॉम यू गाइज और हम डिस्कस करते हैं उसके बेस्ट और वर्स्ट फॉर्मुलेशंस के बारे में. बट नाउ having done it for so long and with the passage of time I've started to feel that this word best and worst is slightly harsh because most of these brands now have become really responsible. They are very much receptive to people's feedback और सब लोग खुद भी काफ़ी responsible feel करते हैं while designing the formulations. So nothing actually should be called worst. But my only purpose of doing this video or these kind of videos is not to throw any shade on any brand, but I always believe as a customer that there's always a space for more improvement and there's room for feedback, and that's the only reason why I do these videos. Otherwise मेरा कोई ऐसे personal mission नहीं है किसी brand को bash करने का, so please do not take it personally. It's just like a interactive conversation so that हम और बेहतर products Indian skincare market में लाने की तरफ काम कर सकें. That's the only purpose. So आज जिस brand के बारे में हम बात कर रहे हैं that is The Deconstruct. This is one of my most loved Indian skincare brands. जब ये brand बिल्कुल नया शुरू हुआ था, they were like newbies. तब से मैं इनके products use कर रही थी जब लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था, and तब से मैं इस brand की fan हूँ और मैं यही सोचती थी कि इनके products इतने hype क्यों नहीं होते जितने होने चाहिए. They also, I do feel, are very responsible when it comes to designing their formulations. Their products are really good. Now in total उनके पास जितना भी portfolio of products है, I think उसमें से 99% products मैं आज तक सारे use कर चुकी हूँ. But for this video in particular, I have only included 12 products बिकॉज इसके अलावा जो 8-10 प्रोडक्ट बच गए जिसके बारे में मैं आज बात नहीं करी हूँ, उनके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुकी हूँ जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था. मैं यहाँ पे उसका थंबनेल लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी. तो अगर आप जिन प्रोडक्ट्स को लुक फॉरवर्ड टू कर रहे थे, अगर आज के वीडियो में आपको वो ना मिले तो प्लीज़ मेक श्योर आप वो वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक के बारे में अपना डिटेल रिव्यू दिया हुआ है, अनस्पॉन्सर्ड रिव्यू दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. फॉर दिस वीडियो आई जस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू पर्पसली like talk about 25 to 30 products and make it so long and boring, and also I did not want to repeat myself. इसलिए मैंने सिर्फ वो नए products include करे हैं जो कि relatively नए हैं या जिनका फॉर्मूला पिछले 6 से 12 महीनों के अंदर अगर कुछ revisions वगैरह हुए हैं, so that आपको एक updated review मिल सके. So since we have 12 products to talk about, without any further delay, I think we should start the video. Let's start with their very famous vitamin C serum. This is their 10% vitamin C plus 0.5% ferulic acid serum, which I feel is one of the most wisely designed formulations of vitamin C in our country. Percentage एकदम correct है, formula एकदम clean है, formula hydrating है, बिल्कुल भी drying नहीं है. Ethyl ascorbic acid वाला उन्होंने derivative use करा हुआ है जो कि काफ़ी sensitive और beginner skin friendly भी है. And of course formula stabilization के लिए उन्होंने 0.5% ferulic acid भी डाला है, साथ में हाइलुरोनिक और इस तरह के दूसरे एमोलियंस भी हैं, पर काफ़ी प्रिसाइज और क्लीन इंग्रेडिएंट लिस्ट है. एंड आई लाइक प्रोडक्ट्स हैविंग अ वेरी मिनिमल इंग्रेडिएंट लिस्ट. ओके, सो दिस वन आई ऑल्सो फील दैट हैज़ द एबिलिटी टू नॉट ओनली परफॉर्म बट परफॉर्म फास्टर एज कम्पेयर टू द अदर सेरम्स. सो इसके साथ आपको 3 से 4 हफ्तों में विजिबली रिजल्ट्स दिखने लगते हैं विदाउट कॉजिंग एनी इरिटेशन एंड ड्राइनेस ऑन योर स्किन. सो आई फील दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट विटामिन सी फॉर्मुलेशंस दैट आई हैव ट्राइड एटलीस्ट इन दिस ईयर 2024. Product number 2 is their lightweight gel sunscreen SPF 55 PA+++. ये एक मिनरल सनस्क्रीन नहीं है, ये एक केमिकल सनस्क्रीन है. इसमें आई थिंक 3 या 4 स्टेबल केमिकल यूवी फिल्टर्स यूज करे हुए हैं अलॉन्ग विद अ बंच ऑफ फोस्फोलिपिड्स. अगेन फॉर्मूला काफ़ी कंफर्टेबल है, ऑयल फ्री है, आपको एक मैटिफाइंग फिनिश देता है. तो जिन लोगों की स्किन आई थिंक एक्सेसिवली ऑयली है या एक्ने प्रोन है, उनको इसका टेक्सचर काफ़ी पसंद आएगा. एंड इसके साथ कोई वाइट कास्ट इश्यूज भी नहीं होते हैं, इसको ब्लेंड करना भी आसान है. तो हर हिसाब से मुझे लगता है कि पॉकेट फ्रेंडली है, टेक्सचर कंफर्टेबल है, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, स्टेबल है. तो इस हिसाब से मुझे लगता है हर स्किन टाइप के लिए, एक्सेप्ट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो, अदर स्किन टाइप्स के लिए इट इज़ अ गुड सनस्क्रीन. Product number 3 is their hydrating micellar water.
नाउ दिस आई फील उन्होंने काफ़ी जेंटली डिज़ाइन किया है इसको, बट आई फील कुछ ज़्यादा ही जेंटल कर दिया है। इतना ज़्यादा जेंटल है ये कि ये वो काम ही नहीं करता जिसके लिए आपने इसको लिया है। आई मीन सी, I can appreciate the fact how you have put in all these hydrating stuff in there, like there's panthenol, there's beta glucan if I'm not wrong, yes, there is allantoin, उस तरह की अच्छी चीज़ें इसमें हैं। बट ऑब्वियसली अगर मैं एक माइसेलर वाटर खरीद रही हूँ तो मैं थोड़ा सा उससे क्लेंजिंग एक्शन एक्सपेक्ट करूंगी, राइट? लाइक इट हैज़ टू डू द जॉब जिसके लिए मैंने उसको खरीदा है, वो एबिलिटी इसमें नहीं है। लाइक अगर मैं पूरे दिन घर पे हूँ और मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ और सिंपली रात में डबल क्लेंस के टाइम पे मैं एज अ फर्स्ट माइसेलर वाटर इसको यूज़ कर रही हूँ तो ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बाहर थे और आपने सनस्क्रीन वगैरह के 2-3 बार री एप्लीकेशंस करे या कुछ मेकअप लगाया या आपको बेसिकली एक प्रॉपर थॉरो क्लेंजिंग एक्शन चाहिए, तो वो इससे आपको नहीं मिल पाएगा। आई डोंट थिंक इट हैज़ द एबिलिटी टू डिजॉल्व सनस्क्रीन एंड मेकअप एंड द डे टू डे ग्राइम एंड डस्ट ऑफ द डे, द एलर्जेंस, द पोल्यूटेंट्स। आई डोंट थिंक इट इज दैट पावरफुल। सो आई फील इवन दो इट इज जेंटल ऑन द स्किन, इट डज नॉट डू द जॉब ऑफ अ माइसेलर, सो you can ditch it. The next product is their Soothing Cleansing Balm. This one I feel is a decent cleansing balm. This does its job. हालांकि अगर आपका एक फुल कवरेज हैवी ड्यूटी मेकअप होगा तो उसको ये मेल्ट डाउन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो डे टू डे बेसिस पे हम मेकअप करते हैं हल्का फुल्का या सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं उसको बहुत इजीली डेफिनेटली ये डिजोल्व कर देता है। और बिल्कुल भी स्ट्रिपिंग नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल हार्श नहीं है, काफ़ी जेंटल है स्किन पे। उन्होंने इसमें बाइजोबोलोल, ओट्स ऑयल, उस तरह की चीज़ें डाली हुई हैं जिससे कि आपका जो स्किन का बैरियर है वो डिसरप्ट नहीं होगा, स्किन की एक जो प्लम्पनेस है वो खराब नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि एक जेंटल डिसेंट सा क्लेंजिंग बाम है डे टू डे बेसिस की क्लेंजिंग के लिए, उस हिसाब से अच्छा है। एक शिकायत इसके साथ मुझे जरूर है कि इसकी जो पैकेजिंग है मुझे थोड़ी सी लो ग्रेड प्लास्टिक ट्यूब लगती है। ये कई ब्रांड्स में मैंने देखा है कि यहाँ से ना फट जाती है। जैसे इसमें से थोड़ा, अभी इसमें आधा आराम से बाकी है, लेकिन जब मैं उसे यहाँ से फ्रंट ओपनिंग से स्क्वीज आउट करना चाहती हूँ तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलता है। इफ यू प्रेस इट टू हार्ड ऑफ कोर्स देन यहाँ से निकल के पूरा प्रोडक्ट इधर उधर फैल जाता है और पूरा मैसी हो जाता है। तो आई फील इफ दे कुड डू समथिंग अबाउट द चीप क्वालिटी प्लास्टिक ट्यूब हियर जो बहुत इजीली यहाँ से फट जाती है। तो आई थिंक पैकेजिंग से मेरी डेफिनेटली शिकायत है एंड बाकी सब चीज़ें इसके बारे में अच्छी हैं। The next product is their Mineral Sunscreen SPF 55 PA 4x+. ये एक tinted mineral sunscreen है जिसमें प्राइमरी फिल्टर्स हैं जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये केमिकल सनस्क्रीन नहीं है। नाउ एज अ tinted sunscreen आई डू फील कि ये उन लोगों के लिए अच्छा काम करेगी जो गर्ल्स डे टू डे बेसिस पे, सपोज अगर आप ऑफिस जाती हैं, कॉलेज जाती हैं और आप मेकअप वगैरह नहीं करना चाहती बट आपको सनस्क्रीन लगाने एट द सेम टाइम आप बिना मल्टीपल स्टेप्स करे, आपको थोड़ी सी कवरेज भी चाहिए अपने एक्ने स्पॉट्स वगैरह के लिए या थोड़ी डार्कनेस को इवन आउट करने के लिए, तो आप टिंटेड सनस्क्रीन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। बट एक जो चीज़ टिंटेड सनस्क्रीन के साथ हमें ध्यान रखनी पड़ती है, नॉट जस्ट फ्रॉम दिस ब्रांड बट किसी के भी साथ, कि जो आप उसको उतना बड़ा क्वांटिटी में लेके जो नॉर्मल सनस्क्रीन हम लगा पाते हैं इसके साथ जल्दबाजी में आप उसे नहीं लगा सकते। यू हैव टू पेशेंटली गिव प्रॉपर टाइम इन ब्लेंडिंग, थोड़ा थोड़ा करके डॉट 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 करते हुए पूरे फेस पे धीरे धीरे लगाना पड़ता है, अदरवाइज एक बहुत ही एशी सी फिनिशिंग आ जाती है, गोस्ट लाइक फिनिशिंग आ जाती है, कंप्लीट मिसमैच हो जाता है टोन का। तो आई फील इफ यू हैव द टाइम इन द मॉर्निंग to nicely apply it, then it is definitely a very good quality tinted sunscreen with a very hydrating texture. The next product is their niacinamide brightening moisturizer. This now I have mixed feelings about. I wouldn't completely blame it on the formula though. I wouldn't say that the formula is bad. Formula अच्छा ही निकाला है उन्होंने क्योंकि niacinamide, vitamin C, kojic acid, उस तरह की brightening चीज़ें इसमें डाली हुई हैं. So I wouldn't blindly blame it on the formula. But I also फेल्ट वाइल यूजिंग इट कि एक तो थोड़ा सा मुझे टैकी लगा, इसका टेक्सचर बहुत हैवी लगा, बहुत ग्रीसी लगा। एंड इवन दो अगर आप थोड़ा सा भी क्वांटिटी कम करके, जैसे मैंने ट्राई किया कि थोड़ा मैं कम लगा लूँ, थोड़ा सा कम करके भी जब आप लगाएंगे ना तो जो पोस्ट एप्लीकेशन फिनिशिंग आती है ना वो मैटिफाइंग नहीं है, वो बहुत ग्रीसी है, बहुत हैवी है, चेहरे पे एक बहुत ऑयली सी फिल्म सी क्रिएट हो जाती है। माई पर्सनली एटलीस्ट माई फेस फेल्ट रियली हैवी आफ्टर अप्लाइंग इट, इट डिड नॉट फील नाइस। मेरा डेफिनेशन ऐसा है कि मॉइस्चराइजर कितना भी हाइड्रेटिंग हो वो ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले को वो एकदम ऐसा लगे कि लगाने के बाद एकदम वो अच्छे से सीपन कर जाए और पता भी ना चले देखने वाले को। इसको लगाने के बाद कॉम्प्लेक्शन एकदम वे डाउन हो जाता है, बहुत डार्क सी स्किन लगने लगती है, बहुत ग्रीसी शाइन मारने लगती है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। तो मेरा पूरा एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं था इसको यूज़ करने का। एंड आई ऑल्सो फील दैट इवन फॉर द पीपल फॉर होम दिस मे हैव वर्कड ऑल्सो, आई डू फील दैट दिस इज
अ वेरी जेनरिक मॉइस्चराइजर, इट्स नथिंग स्पेशल, आप इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बहुत फैंसी चीज़ें, खास चीज़ें नहीं हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी एवरेज ऑर्डिनरी सॉर्ट ऑफ अ मॉइस्चराइजर विच इज़ नॉट बैड बट इज़ नॉट ग्रेट ऑल्सो. The next product is their Ceramide Skin Soothe Moisturizer. This one is such an underrated moisturizer. I don't know why is it not being talked about enough. I do feel that it does not get the kind of attention that this product deserves. This is probably the most affordable barrier repairing moisturizer you can get in the Indian market. I mean, what is there not to like in this product? 3 different type of ceramides they have used. They have used arginine, centella asiatica, there is cholesterol, there is lipids. The texture is also very comfortable. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली, एक्ने प्रोन भी है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है तो भी इसका टेक्सचर आपको पसंद आएगा. यू विल एंजॉय यूजिंग इट. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू यूज इट ऑल्सो. सो दिस वन इज अ हाईली रिकमेंड फ्रॉम माई साइड. The next product is their SPF 30 Brightening Lip Balm. This is definitely a decent lip balm. It's very hydrating, काफ़ी comfortable था. I enjoyed using it. But please do not expect too much from this product. ऐसा ना सोचें कि इसमें विटामिन सी है तो ये लिप पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में ज़्यादा कुछ हेल्पफुल होगा. I can see that they have put in sufficient amount of vitamin C there. Also linoleic acid है इसमें थोड़े से jojoba esters compounds भी दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला ठीक बनाया हुआ है. So but just look at it as a regular lip balm, a good lip balm, but do not expect it to work on your lip pigmentation is all what I'm saying. Since हम लिप बाम्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो साथ में कवर कर लेते हैं उनका दूसरा लिप बाम विच इज देयर hyaluronic acid lip balm. This one is also like okayish. I mean विटामिन सी वाला थोड़ा सा फिर भी एक बार को अच्छा है, लेकिन ये वाला ना मुझे प्रिटी बिलो एवरेज काइंड ऑफ लगा. क्योंकि आई टेल यू व्हाई. ऑफ कोर्स उन्होंने हाइलुरोनिक एसिड और थोड़े से ऑयल्स वगैरह इसमें डाले हुए हैं, लेकिन फॉर्मूला फिर भी हाइड्रेटिंग नहीं है. एंड माय एक्सपेक्टेशन इज जब भी मैं कोई हाइलुरोनिक एसिड इन्फ्यूज चीज़ खरीद रही हूँ, कोई भी बंदा जब भी किसी चीज़ पे हाइलुरोनिक एसिड देखता है, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो या सनस्क्रीन हो या लिप बाम हो या कुछ भी, तो एक बेसिक एक्सपेक्टेशन माइंड में सेट हो जाती है कि उसमें हाइड्रेशन बहुत सारी मुझे मिलेगी. लेकिन इसको यूज़ करने वक्त मुझे ऐसे फील हो रहा था कि फ्रीक्वेंट रीएप्लीकेशन की नीड मुझे फील हो रही थी. लिप्स बहुत जल्दी ड्राई आउट कर दे रहा था. तो आई डोंट feel that it can moisturize the lips for longer hours. So you can call it like okayish, but इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है. The next product is their hydrating serum. This one is like a typical सीधा सादा hyaluronic acid serum. That's it. इसमें कुछ और नहीं है. Like इसमें 2% hyaluronic acid है और 1% niacinamide है. But तभी इसको खरीदेगा अगर आपका primary purpose है skin की hydration को target करना. And other than that इसमें कोई और added benefits नहीं है. So I feel there is this certain section of people who invest in separate hyaluronic acid serums जो daily basis पे लगाते हैं. तो अगर आप hyaluronic acid लगाते हैं तो फिर definitely उस हिसाब से अच्छा है ये, लेकिन अदर देन दैट इसमें कुछ ऐसे एडिशनल बेनिफिट्स नहीं है जो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकें. सो द वे आई यूज इट इज फॉर एग्जांपल केमिकल पीलिंग के बाद कभी लगा लिया, या मुझे ऐसे लग रहा है बहुत दिन से बहुत डल और बुझी हुई लग रही है स्किन, उसको थोड़ा सा उसको हाइड्रेट करना है तो लगा लिया. बट डेली बेसिस पे आई डोंट थिंक इट्स अ मस्ट हैव. So it's not a product which is bad. I'm not trying to say that it's bad, but all I'm trying to say is that it's not ऐसा कुछ खास स्पेशल भी नहीं है. You can actually skip it. The next product is their exfoliating body wash. ये मैं आपको पहले ही बता दूँ दैट इवन दो इसका फॉर्मूला अच्छा है बट यू मे नॉट इन्जॉय टेकिंग अ शावर विद इट बिकॉज इट डज नॉट गिव अ वेरी प्लेजरेबल अरोमा. उतना रिफ्रेशिंग, उतना मज़ा नहीं आता है लगाने में. लेकिन कम्प्लीटली जजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला दैट इट हैज़, आई फील इस प्राइस पॉइंट में उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला है. 11% AHA है और 2% BHA है. जिन लोगों को बहुत फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होती है ना, उनका बॉडी ऑर्डर कंट्रोल करने में भी काफ़ी हद तक ये हेल्प करेगा. और साथ में जिन लोगों को बॉडी एक्ने वगैरह भी होती है ना, उनको भी इस तरह के बॉडी वॉशेस यूज करने चाहिए बिकॉज दे एक्चुअली हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ दैट बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसकी वजह से वो एक्ने होती है. सो आई फील अगर आपके इस तरह के बॉडी इश्यूज हैं देन दिस कैन बी अ हेल्पफुल प्रोडक्ट फॉर यू. The next product is their Fluid Brightening Sunscreen SPF 50 PA 4x+. ये मैंने रिसेंटली ही ट्राई की थी एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा है. इसका टेक्सचर बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है. इसमें कोई वाइट कास्ट इश्यूज एज सच मुझे लगे नहीं. मेरी स्किन ने इसको आराम से एक्सेप्ट किया. कुछ हद तक ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, सिलिकॉन फ्री फॉर्मूला है, अच्छा है. एवरीथिंग अबाउट द फॉर्मूला इज़ नाइस बट
मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने 3-4 बार जब इसे यूज़ किया तो मैंने ये पाया कि इट वॉज स्पिलिंग फॉर मी, थोड़ा सा बॉल अप भी करती है ये। अब आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंस, मैंने क्वांटिटी कम भी लेके देखी थी बट स्टिल इट हैपेंड, जबकि फ्लूइड सनस्क्रीन के साथ ऐसा नहीं होता है। वो तो इतनी मिल्क लाइक होती हैं कि वो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और वो आराम से ब्लेंड हो जाती है। बट इसके साथ 3-4 बार जब भी मैंने इसको लगाया ना तो इट बॉल्ड अप फॉर मी। थोड़े पिलिंग इश्यूज भी मुझे हो रहे थे इसके साथ। सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी अगर आपने ये वाली यूज करी कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा था कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, जबकि फॉर्मूला तो इसका काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे। बट आई डिड नॉट लाइक यूजिंग इट। आई फेल्ट कि मेरा जो एटलीस्ट एक्सपीरियंस था मुझे थोड़ी सी बिलो एवरेज टाइप की लगी। मुझे लगता है कि सेम इसी ब्रांड में भी और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, दूसरे जो वेरिएंट्स हैं सनस्क्रीन्स के, वो इससे ज़्यादा बेहतर हैं। तो अगर मैं लूँगी आई विल डिच दिस एंड आई विल गो फॉर द अदर वंस। ऑलराइट यू गाइस, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई डू होप दैट दीज मिनी रिव्यूज वर हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो अगर आपने इसमें से कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो आपके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा था, चाहे वो मुझसे सिमिलर था या मुझसे अलग था। फिर भी आई वुड वॉन्ट यू टू कॉमेंट डाउन बिलो so that others can also learn from your experience, and I would also love to read that. I'm going to see you soon in my next video, guys. Until then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.